Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. Yes, Vaji Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Thank you very much for excellent lecture. मुझे आप बहुत simple way से explain करते हो. I love that simplicity in your explanation. मुझे एक one thing I wanted to share and also had a question. ये by any chance आपको पता है कहीं पे ये प्रद्युम्न या अनिरुद्ध ये भगवान का लाइक संकर्षण का इज देयर एनी टेम्पल माताजी वेयर दे आर वर्शिप्ड बिकॉज मुझे आई एम फुल्ली नॉट क्लियर बट चेन्नई में वो पार्थसारथी टेम्पल में आई थिंक प्रद्युम्न अनिरुद्ध आई डोंट नो व्हेदर संकर्षण इज देयर बट वहां का डेटीज वो मेन श्राइन में ही एक्चुअली है was trying to quickly search ऐसा नॉर्थ में कुछ है या नहीं but if somebody is aware would like to know that and दूसरा माता जी more like a question that I'm also trying to figure out. See, sense gratification एक तरह material sense gratification some things are very clear, ये तो definitely material sense gratification है. Again भगवान का वो spiritual path में जो कुछ करना है वो भी clear है. बट बीच में ना वो सेंस ऑफ ड्यूटी आता है. दैट्स वेयर इट्स कंफ्यूजिंग माता जी बिकॉज जो हम कर रहे हैं because duty say we cannot escape but kaha we stop and understand that ye to duty is required because we've karma ke wajah se ya his body ke wajah se. I'll give you a simple somebody had just posted a joke but I thought it was very profound. वो कह रहे थे कि अभी बच्चे का मेमोरी इंप्रूव करने के लिए हम बच्चे के पीछे जाके ये आमंड ले लो, ये नट्स ले लो, ऐसा हम करते हैं. बट व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, नॉट दैट इट हैपेंड बट जस्ट आई एम सेइंग व्हेन वी वर ग्रोइंग अप व्हाट दे वर सेइंग एक थप्पड़ मारने से ऑल द मेमोरी एवरीथिंग ज्ञान आता है. सो मेरा क्वेश्चन ये है माता जी कि how do we know that जब when we are performing our duty it is not completely material ऐसा because I know कलयुग में ऐसा हो गया है कि kids are all privileged and all that but कैसे we stop at a point and say that ये मेरा duty है इतना काफी है because the rest will all be spiritual. So somehow मुझे completely I'm not able to divide this is spiritual, this is made because sense grad oh if I'm going and looking at TV or going and eating in a restaurant so वो सब पता है मुझे because it's all to please my senses my eyes or ears or tongue in a material way. Again मैं temple जा रही हूँ then I'm going and doing some seva then वो spiritual है that's also very clear. but बीच में somehow this sense of duty a material duty spiritual वो कैसे of course भगवत गीता में भी भगवान ने कहा remember me and do your duty. And Arjun maybe keh raha hai, you were asking me to fight and also to remember you. But Mataji, I don't know whether because for me वो थोड़ा gray area लग रहा है. How do we ensure on a regular basis that जो कुछ हम कर रहे हैं is not although it looks appears to be material is still because of our duty this is actually spiritual. If you can share some thoughts on that, Mataji. Again, thanks for an excellent lecture. Hare Krishna. Pranam. Mataji, you're on mute, Mataji. No, my voice, yeah, can't hear you. Not yet. No. No, no, Mataji. Can't hear you, Mataji. Hare Krishna. Tulsi Mata. Yeah, okay. हाँ. Yes. Okay. Yes, yes.
हरे कृष्णा माता जी, वंडरफुल क्वेश्चन। ये तो मतलब मेरा भी इंटेलेक्ट पता नहीं, मैं कोशिश करती हूँ माता जी जितना मुझे समझ आया है, अदरवाइज गोपी प्रभु जी है ही। माता जी आपने पूछा कि ड्यूटी, तो जब हम ड्यूटी जो आपको लग रहा है कि ग्रे एरिया है, डेफिनेटली अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो आपकी ड्यूटी है ऑफिस में टाइम पे पहुंचना है आपको। हाँ, या फिर अगर हाउसवाइफ भी है तो उसकी भी ड्यूटीज है कि बच्चों को उठकर सवेरे ये चीजें करके देनी है, टिफिन रेडी करके देना है, शाम को घर आएंगे तो उनके लिए ये रेडी रखना है, उनके कपड़े प्रेस करा के रखने हैं, वॉट एवर। तो ड्यूटीज मेल फीमेल सभी को लगी हुई है ऑफिस में पहुंचने की, और या फिर हाउस में है तो घर की काम काम की। लेकिन जहां तक मुझे समझ आ रहा है, श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जो हम प्लान्स बनाते हैं ना, फ्यूचर प्लान्स, कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जो ज्यादा से ज्यादा टुवर्ड्स हमारे इंद्रिय तृप्ति की तरफ जाते हैं, ऐसे प्लान्स हमें नहीं बनाने हैं। और ड्यूटी भी हमें इतनी ही करनी है जैसे कि हम हमारे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो हमारा जीवन है उसके लिए हम टाइम दे पाए। ऐसे नहीं कि हमने फॉर्मेलिटीज करी और हम सिर्फ टेम्पल में 2 बारी या फिर एवरी संडे जो फीस्ट होता है उस दिन हम टेम्पल में गए। वो भी बहुत अच्छी बात है, जरूरी भी है करना। लेकिन एट द सेम टाइम, या फिर कोई हमें पुश कर रहा है, हमारे शिक्षा गुरु हमें पुश कर रहे हैं कि टेम्पल में आना जरूरी है, हफ्ते में एक बार तो अपना चेहरा दिखाओ टेम्पल में, टाइप्स। हाँ, तो हम क्या करते हैं, कई बारी हमारी ड्यूटी भी कर रहे हैं, पर हमारी ड्यूटी जो है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी हम टॉकिंग, वो भी हम लोग प्रेशर में आके करते हैं। तो शिला प्रभुपाद हमें उसी के लिए मना कर रहे हैं, है ना। अहंकार जो है वो हमें कम करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। मतलब हम देखेंगे कि देखो, आपने जैसे कहा कि हमारे ड्यूटीज करना हमें बहुत जरूरी है, दैट इज द ग्रे एरिया ऑफ आवर लाइफ, पर हमें वो करनी भी जरूरी है। जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम्हें युद्ध करना है, ऐसे नहीं कि तुम हाथ पे हाथ धरे बैठकर मेरी माला जपते रहो, नहीं। लेकिन जो ऐसे साधु संत है जो पूरी तरह से संन्यास लेकर आज मतलब वृंदावन में भी रह रहे हैं, जो और कुछ भी भौतिक कार्यों में अपने आप को नहीं लगा रहे, वो पूरी तरह से 24 आवर्स भगवान को दे रहे हैं। तो उनके लाइफ में ड्यूटी का जो आपने कहा कि ये सीन जो है वो नहीं आ रहा है, लेकिन हम तो साधु संत नहीं है। हाँ, हम तो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हैं, तो जो हमें उसका बैलेंसिंग करना जरूरी है। लेकिन बैलेंसिंग 30-40 या फिर 30-60 30-70 नहीं करना है। मतलब टुवर्ड्स मटेरियल जो है हमें कम देना है, और टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी है वो ज्यादा करना है। मतलब ड्यूटी करते करते हुए भी, जैसे शिला प्रभुपाद भी गृहस्थ आश्रम में थे, उन्होंने भी अपनी ड्यूटी करी, लेकिन साथ साथ में उन्होंने अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी जागृत रखा। अपने गुरु के जो शब्द आए, वाणी जो आई, उसको उन्होंने टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंस दिया, और उसको पूरी करने के लिए अपनी पूरी उन्होंने जी जान लगा दी। सो जब तक हम गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं तो ये सब ड्यूटीज जो है वो हमें करना भाग है। क्योंकि हम हमारे अगर शादी होती है तो एक पति है, पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो अगर उसकी इच्छा कितनी भी हो कि रोज मैं उठकर मंगल आरती चला जाऊंगा, लेकिन उसको वो सर्कमस्टेंसेस परमिट नहीं करते, है ना। तो उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कैरी करने के लिए एक माता पिता को अपने बच्चों के लिए, और बच्चों को अपने माता पिता के लिए, उनको अपने कार्य करना जरूरी है ही है। लेकिन प्रभुपाद हमें यहाँ पर बता रहे हैं यहाँ पर कि हम हमारे मन को वो कन्विक्शन है ना पूरी तरह से, तो हम किसी के फोर्स में आकर काम नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे। वी विल डू इट फ्रॉम आवर फॉर आवर ओन सेक। हमारे मन पूरे हृदय से के साथ हम उस आध्यात्मिक ड्यूटी को भी हम पार लगाएंगे। और फिर जो हमारी स्पिरिचुअल भौतिक जो ड्यूटीज मटेरियल रहती है वो हम सिर्फ नाम मात्र करने के लिए करेंगे। रेशो पूरा उल्टा हो जाएगा। जैसे हम अब भौतिक कार्य पूरी मन से कर रहे हैं और आध्यात्मिक ड्यूटीज हम नाम मात्र के लिए कर रहे हैं। जब हम पूरे मन से उसको एक्सेप्ट करेंगे तो यही रेशो उल्टा हो जाएगा कि हम स्पिरिचुअल ड्यूटीज पूरे मन से करेंगे, और फिर जो हमारी भौतिक ड्यूटीज है वो सिर्फ नाम मात्र के लिए। जैसे आज हमारे जो आचार्य है वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए सिर्फ छाछ पिया करते थे। 3 दिन तक उस छाछ, 3 दिन बाद एक बार वो छाछ लेते थे। दैट इज द आई मीन, शायद हम उसको इस तरह से समझ पाए कि हम मैक्सिमम टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी आगे बढ़ते रहेंगे तो दिस ड्यूटीज विल नॉट हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हमारी मटेरियल ड्यूटीज ऐसी होनी चाहिए जो हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन को पूरा करने के माध्यम में उसके आड़ ना आए, है ना। क्योंकि आज मुझे ऑफिस जाना है तो मैं 16 माला नहीं कर पाऊंगी, या फिर आज मुझे एक्स्ट्रा काम आया है ऑफिस का, इसके लिए मेरा आज रीडिंग रह गया, या फिर मेरा आज हियरिंग रह गया। नहीं, दैट शुड बी आवर टॉप प्रायोरिटी। जैसे प्रभुपाद ने मॉर्निंग प्रोग्राम बनाया है, मॉर्निंग प्रोग्राम में आपका सब कवर हो जाता है, मंगल आरती हो जाती है, फिर आपका चैंटिंग हो जाता है, फिर आपका भक्तों के साथ में श्रवणम भी हो जाता है। तो बनाया ही मॉर्निंग प्रोग्राम इसलिए श्री प्रभुपाद ने कि उसके बाद आप अपनी मटेरियल ड्यूटीज में भले चले जाओ, क्योंकि अपने अपना आध्यात्मिक ड्यूटीज का कोटा जो है वो मॉर्निंग प्रोग्राम में ही अपने
कर लिया। आई होप माता जी मैंने कुछ अलग आंसर नहीं दिया जो आपको एक्सपेक्ट था। अम, No, गोपी no, मैम Mataji, you explained it beautifully. So हमें, main point is जो कुछ काम ले रहे हैं, whether it is material, right? Particularly if it is material, थोड़ा और ज़्यादा introspect करना पड़ेगा, will it take me in the spiritual path or not? Necessity है, avoid नहीं कर सकते तो करना ही पड़ेगा. But बाकी सब, थोड़ा, deeply, again, more chanting we do. I think Bhagwan ही, will show us that direction. No, Mataji, you answered it beautifully. Thank you. Hare Krishna. Pranam. हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, नाइस क्लास, बहुत अच्छे से समझाया। वेरी नाइस। जो है ये टेक्निकल चीजें चल रही हैं, सो एक्सप्लेन ब्यूटीफुली। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे जो है, जो पहला जो श्लोक था, 3 प्रकार के अहंकार, तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में बताया। एंड अहंकार जैसे हम सभी में होता है, तो इट हैज टू बी गिवन अप, और हम लोग को वो फॉल्स ईगो से रियल ईगो पे आना है। लाइक वेरी नाइसली सेड कि मैंने जब किया, मैंने भोग लगाया, वो मैं कभी नहीं जाता, एंड इट विल नेवर गो। बट वही है कि इसको प्यूरिफाई करना है फ्रॉम फॉल्स ईगो, इट हैज टू कम टू रियल ईगो। एंड वो ही जो है, इट इज नोन बाय द नेम ऑफ संकर्षणा। ये एक आपने बताया, जो आज का जो श्लोक है उसमें है। फिर अहंकार भी जो है, हमने देखा कि इज कैरेक्टराइज्ड एज द डूअर एंड द इंस्ट्रूमेंट एंड एज एन इफेक्ट। तो ये जो अहंकार है, वो इंस्ट्रूमेंट भी है और इफेक्ट भी है। तो वो कैसे यूज करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो या वेरी नाइसली जो है, दिस ऑल दिस टेक्निकल थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड इन भागवतम। तो या आई थिंक हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे। लेट्स होप प्रभुपाद जी की कृपा से, अपने गुरु की कृपा से, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। आज का जो कार्तिक मंथ है उसका आज खत्म हो रहा है, तो आप सभी को उसकी शुभकामनाएं। भीष्म पंचक में हम सब ने जो कुछ सोचा, हमने संकल्प जो लिए, वो विकल्प नहीं होके हमने उसको पूरा किया, ऐसे हम समझते हैं। और सभी को उसकी शुभकामनाएं देते हुए मुझे अच्छा लग रहा है सबके साथ में, क्योंकि लास्ट 2-3 डेज मैंने मिस किया क्लास। तो थैंक यू सो मच फॉर योर एसोसिएशन प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस कुंजेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जैसे माता जी ने कहा कि आपने सरलता से समझा दिया। माता जी का और एक प्रश्न था कि जैसे संकर्षण, प्रद्युम्न, इनके कुछ डेटीज है क्या? तो नॉर्थ में अगर हम लोग ब्रज चौरासी करेंगे तो वहां पर फिर हम लोग को दिखाई देगा कि बलराम जी का मंदिर है, रेवती माता जी का मंदिर है, जहाँ पर होली के दिन स्पेशली बहुत उत्सव होता है। और फिर और एक है नॉर्थ में, जब भगवान ने अपने माता पिता के लिए चारों धाम का सब किया था ना, कि चारों धाम वहीं पर है सब ब्रज में। तो वहां पर एक बलराम जी का पर्वत है, वो पूरा व्हाइट कलर का है, जैसे बलराम जी का जो संकर्षण जी का है ना, पूरा व्हाइट कलर का ऐसे ही है। और फिर जैसे हमने पिछले अध्याय में देखा था कि शिव जी के गले में जो सर्प है, वो जो बलराम जी का स्वरूप है, जो अहंकार कम कर देता है। तो वैसे ही वहां पर सर्प के शेष के रूप में है वहां पर, और उनका भी दर्शन किया जाता है। नॉर्थ में इतना ही है, और फिर उनके और कई जैसे प्रद्युम्न और उनका सबका नहीं है मंदिर, ये वो बताना था। नॉर्थ में और कोई ज्यादा है नहीं, सिर्फ कृष्ण की है। Thank you. Thank you. Thank you, Mataji. थैंक यू Hare माता जी। Krishna.
ठीक है, और किसी का कोई कमेंट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच माता जी। निरंतर श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो हम लोग